हाँ जी बच्चों, +1 गुड इवनिंग। मेरे लास्ट क्लास के अंदर ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵੇਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮੋਨੋਟੈਲਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੀਓਟੈਲਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਕੋਟੈਲਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰੀਓਟੈਲਿਕ ਹੈ, यूरिया रिमूव करते हैं आप, ठीक है। फिर आपने उस तो बाद देखिया भी अपनी बॉडी के अंदर केड़ा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि अपने एबडोमिनल कैविटी के अंदर डॉर्सल साइड पे लोकेटेड ने, ठीक है। हुण बेटे अज आपां इहदा नैक्सट पार्ट मतलब किडनी की डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिहड़ी उहनूं स्टडी करांगे, क्लियर। We have is the human excretory system under which we will study the detailed structure of human excretory system. First of all बेटे अपने को की है आप बिल्कुल बिगिनिंग तो स्टार्ट करते हैं। excretory system के पार्ट्स केड़े केड़े ने अपने को पेयर ऑफ किडनीज जो आप लास्ट क्लास च दसिया भी सीगा, पेयर ऑफ यूरेटर्स द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर अपने को है यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरिनरी ब्लैडर। देन वी हैव इज द यूरेथ्रा। क्लियर है बेटे। सो हुण आपां चलदे हां किडनीज दे उपर, फिर आपां वन बाय वन सारे पार्ट्स डिस्कस करांगे। किडनीज की ने फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीज दी पोजीशन की होगी, लोकेशन एंड पोजीशन। किडनीज ने जिहड़ियां ओ एब्डोमिनल कैविटी दे अंदर लोकेटेड ने, ठीक है। कित्थे लोकेटेड ने एब्डोमिनल कैविटी दे अंदर? ओह एब्डोमिनल कैविटी दे अंदर अपने को कित्थे बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, लंबर वर्टिब्रे दे कोल इस जगह पे, ठीक है, बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। की ने ओह किडनीज अपने को बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स ने जो कि रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है। अगर आप मेजरमेंट्स की गल करिए तो 10 to 12 सेंटीमीटर, अगर मैं दिस इज किडनी, दिस इज द लेंथ ऑफ द किडनी 10 to 12, ब्रेथ है जी 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है जी किडनी की और मेरे को 2 to 3 सेंटीमीटर है जी होंगी, क्लियर। हुण किडनी है जी दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल पेरिटोनियम पेरिटोनियल कैविटी है और लेयर नूं आपां कहने पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये अपने को ह्यूमन दी बॉडी है, इत्थे करके किडनीज ने जिहड़ियां वो प्रेजेंट। ये पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल वॉल एक कैविटी है। ये वॉल है ना जिहड़ी ये किडनीज नूं पिछे छड्ड दे, मतलब बाकी सारे ऑर्गन्स इत्थे ने, किडनीज विल बी बिहाइंड द पेरिटोनियल वॉल, ठीक है, of peritoneal cavity. That is why retro means behind, piche, the peritoneum, clear. That is why it is also called as retroperitoneal organ, clear. Kidneys are retroperitoneal organ क्योंकि यह पेरिटोनियम दे पिछे प्रेजेंट है। हुण
बेटे किडनीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕਨਕੈਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਕੈਵਿਟੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਨਕੈਵਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਲਸ ਜਾਂ ਹਾਈਲਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਹਾਈਲਮ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਇਨ ਕਲਰ ਨੇ, ਰੈਡ ਟੂ ਬਰਾਊਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਥਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਪੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰੇਟਰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੀਥਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਾਨੈਫਰਿਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਫਰॉन्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਲਿੰਫ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਫਰॉन is the structural and functional unit of kidney. What is nephron? Nephron is structural and functional unit of kidney. Now we are moving toward the internal structure of the kidney. Clear? ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 in ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲੋਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਨੇ। ਲੈਫਟ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਟਲ ਹਾਇਰ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਡਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ अपने को लेफ्ट किडनी है दैट इज स्लाइटली लार्जर देन द राइट वन, लार्जर एंड हायर। ठीक है, जी अपनी लेफ्ट किडनी है। क्लियर? क्योंकि जी राइट किडनी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। दैट इज द रीजन ऑफ दैट। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਡਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਡਨੀ, ਇਹ ਹਾਈਲਮ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਿਡਨੀ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਡਨੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਐਂਡ ਇਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਪਾर्ट है इन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ਜਿਹੜਾ इनर पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। क्लियर? ਜਿਹੜਾ मेडुला है ਹੁਣ मैं रब कर ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। मेडुला है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਾमिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾमिड्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। these are the pyramids present in the kidney। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ medullary pyramids। this region was known as medulla ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ medullary pyramids। clear? ਜਿਹੜੇ ਇਹ pyramids ਨੇ ਬੇਟੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੇ ਮੈਡੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਫਰॉन्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਫਰॉन्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਖੁੱਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਦਿਸ ਕੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਦਿਸ ਵਨ ਸਭ ਦੀ ਇਕੱਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਰ calyx। क्लियर? माइनर calyx एक ते लेबल कर देने हैं। माइनर calyx जिथे सारे खुल गए वो होंगे मेजर calyx। ठीक है, जो कि लीड करता है इनटू द यूरेटस। तो आप किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर हजे आप नेफ्रॉन नहीं किया। किडनी है जी वो अंदर न्यूमरस कोइल्ड स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ने जिन्हों आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहने ते नेफ्रॉन्स नूं आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह दिंदे आ। नेफ्रॉन्स ने जिहड़े वो अपने कोल दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल एनवेल्प्ड बाय अ फर्म कैप्सूल ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू। ठीक है बेटे, तो कैप्सूल है जिहड़ा वाइट फाइबरस टिश्यू का वो नेफ्रॉन्स के अराउंड प्रेजेंट होंदा है। आउटसाइड द कैप्सूल इज ए लेयर ऑफ फैट दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो मैं क्या किडनी के बाहर अपने को एडिपोज टिश्यू की लेयर प्रेजेंट है विच इज फॉलोड बाय द रीनल फेसिया। तो अपने को 3 चीज़ां हो गई, वाइट फाइबरस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रीनल फेसिया, जो कि किडनी का बाहरों की एक प्रोटेक्टिव कवर है जिहड़ा ओह तैयार करते। दे ऑल प्रिपेयर द प्रोटेक्टिव कवर आउटसाइड द किडनी। उस तो बाद है बेटे अपने को कि जिहड़ी नेफ्रॉन्स ने वो कोइल्ड स्ट्रक्चर्स ने आउटर रीजन ऑफ किडनी के अंदर प्रेजेंट ने एंड रन स्ट्रेट इन द इनर रीजन। तो अपनी किडनी है जिहड़ी जदों आपां उहनूं देखदे हां तो उहदे अंदर आपां नूं डॉटेड स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां वो दिखदियां ने। नेफ्रॉन्स एवें लगदा है कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ने। तो किडनी है जिहड़ी इहदे आउटर रीजन नूं आपां रीनल कॉर्टेक्स, किडनी लई वर्ड यूज किया जाता है रीनल। तो आउटर रीजन नूं आपां कहंदे आ रीनल कॉर्टेक्स, इनर रीजन नूं आपां कहंदे आ मेडुला। मेडुला दे अंदर प्रेजेंट ने पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हों कहंदे आ रीनल पिरामिड्स। ठीक है, तो जिहड़े पिरामिड्स ने बेटे उन्हां दा बाहर वाला जिहड़ा हिस्सा है वो ब्रॉड हुंदा है जिन्हों रीनल पैपिला कह दिंदे हैं। अंदर वाला हिस्सा है जिहड़ा वो माइनर कैलिक्स दे अंदर खुलदा है ते 2-3 माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाते हैं। वो मेजर कैलिक्स है जिहड़ा वो एक बड़ी स्ट्रक्चर पेल्विस दे अंदर जाके ओपन अप हो जाते हैं। क्लियर, तो अपने कोल माइनर कैलिक्स हो गया जिथे सब दा कैलिक्स ज्वाइन किया, वो मेजर कैलिक्स जिहड़ी बिग स्पेस आ गई उन्होंने अपन ने कहता पेल्विस। ठीक है, ਇਹਦਾ ऊपर वाला हिस्सा पिरामिड का अपने कोल की है रिनल पैपिला। क्लियर, अपने को सारे पार्ट्स क्लियर हो गए कि किडनी के बाहर कुशन्स प्रेजेंट ने, कैप्सुलर वाइट फाइबरस टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है जो कि किडनी की आउटर स्ट्रक्चर नू फॉर्म करता है। एंड अपने कोल की हो गया इंटरनल साइड पे आवांगे तो अपने कोल मेडुलरी रीजन के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने। पिरामिड के 2 हिस्से ने, एक ब्रॉड पार्ट है उन्होंने रिनल पैपिला कह देंगे हैं, जिहड़ा उहदा नैरो पार्ट है वो खुलता है माइनर कैलिक्स के अंदर। 2-3 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स फॉर्म करते हैं जो कि पेल्विस के अंदर जाके ओपन अप हो जाता है।
ठीक है बेटे, दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। हुण ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਰੇਟਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਯੂਰੇਟਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। क्लियर, तो एक बार फिर दस दिनी है यूरेटर की है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ने जो कि यूरिन नो ड्रॉप बाय ड्रॉप कलैक्ट करते हैं ते यूरिनरी ब्लैडर दे कोल जाके छड़ दिंदे ने। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिहदे अंदर पाइप्स दियां ओपनिंग्स ने, यूरेटर्स दियां ओपनिंग्स प्रेजेंट ने इस जगह ते। इन्हां ओपनिंग्स दे थ्रू यूरिन इत्थे कलैक्ट होना शुरू हो जाता है। इहदे नीचे इत्थे यूरेथ्रा दा सफिंक्टर प्रेजेंट हुंदा जिथे जाके ये खुलदा है। सफिंक्टर मतलब वो स्ट्रक्चर जिहदे थ्रू वो खुल जाऊगा। यूरेथ्रा मतलब वो ओपनिंग जो कि यूरिन नूं बाहर थ्रो कर दूगी। अगेन मेल्स के अंदर यूरेथ्रा है जिहड़ा मैं कल भी दस्सिया सी, उहदी लेंथ ज़्यादा हुंदी है, फीमेल दी बॉडी दे अंदर यूरेथ्रा दी लेंथ स्मॉल हुंदी है। मैं एक बार फिर ये वापस आऊँगी बेटे, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अपने कोल की आ गया, यूरेटर्स की हो गया पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर की हो गया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिदे अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है, एंड यूरेथ्रा की हो गया जिदे अंदर जिदे थ्रू यूरिन है जिहड़ा वो बाहर निकल जाऊगा। क्लियर, आप ये कह सकते कि यूरिन है जिहड़ा वो बाहर जिहड़ा है बॉडी उन्होंने थ्रो कर दिंदी है जिदे थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रा। तो हुण अपने कोल बेटे आपां नूं क्लीयर हो गया मेडुला रीजन की हुंदा है, कॉर्टेक्स रीजन की है, माइनर केलिक्स की है, मेजर केलिक्स की है, पेल्विस की है, मेडुलरी पिरामिड्स की है। ठीक है बेटे, हुण अपने कोल जिहड़ा अपने कोल किडनी दी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, जिन्हें बेसिकली यूरिन नूं प्रिपेयर करना है। ठीक है, हुण आपां उस तो पहला इत्थे मैं एक होर डायग्राम ड्रॉ करदी हां, उहदे मैं लेबल्स नहीं करूँगी। ये मेरे मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, ठीक है बेटे। हुण देखो अगेन आप हर चीज़ नूं हार्ट दे नाल कनैक्ट कर रहे हैं, आप जिहड़ा जिहड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उन्हां नूं आपस च कनैक्ट कर रहे हैं। हुण देखो हार्ट तो आयोटा दे थ्रू ब्लड आया, जिहड़ा ये हाइलम है ना ये सिर्फ यूरेटर नूं ही नहीं लीव करता, हाइलम दे अंदरों दी ब्लड वैसल्स ने जिहड़ियां वो भी एंटर ते लीव हुंदियां ने। तो यानी कि रीनल आर्टरी है जिहड़ी वो किडनी दे अंदर एंटर करती है थ्रू दिस हाइलम, एंड रीनल वेन है जिहड़ी वो भी किडनी दे थ्रू लीव कर रही है थ्रू दिस हाइलम। ठीक है बेटे, रीनल आर्टरी जदों एयोर्टा है जिहड़ा वो अपने कोल ब्रेक डाउन होगा तो वो अपने कोल की बन जाऊगा। तो इत्थे बेटे आपां ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि मेरे कोल दो वैसल्स ने। ठीक है, ਉਹਦੀ एक एंट्री पॉइंट इधर एंटर हो गया, एक एंट्री पॉइंट तुसी इत्थों भी दूसरी किडनी के अंदर भी शो कर सकते हो। सिमिलरली वेन का भी अपने कोल आउटलेट इधर ते इधरों दी हैगा इधर। ठीक है, तो अपने कोल इस तरीके दे नाल जिहड़ा एयोर्टा है वो ब्रेक हो जाता है इनटू द रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी दे थ्रू जिहड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किडनी दे कोल चला गया। हुण देखो किडनी दे दो काम है, किडनी दे दो काम है। वन मैं इत्थे लिख रही हाँ, फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस किडनी, किडनी का की काम है, एक तो जी आपने कल लास्ट क्लास च कहा अपना लिवर यूरिया जनरेट कर रहा है, मेरा ब्लड कहता है भी यूरिया है जिहड़ा इनू एलिमिनेट करना जरूरी है। किडनी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यूरिया भी निकालना चाहती है। दूसरा काम की है, सेकंड वर्क है कि ये जिहड़ी हार्ट तो वैसल आ रही है ये तो उन्हें ऑक्सीजन भी लैनी है, अपना काम भी तो चलाना है ना। उन्हें याद रखनी है दोनों चीज़ा कि जिहड़ी मेरी किडनी है वो यूरिया बाहर कढ़ना है उन्हें तो उन्हें ऑक्सीजन लैनी है। हुण मेरे कोल ये जिहड़ी ब्लड सर्कुलेशन आ रही है ये देखो पहला तो हार्ट को आई तो स्प्लिट होगी, स्प्लिट होके इत्थे रीनल आर्टरी बन के किडनी के अंदर एंटर होगी। हुण ये जिहड़ी सर्कुलेशन है बेटे ये अपने कोल फर्दर अंदर जाके
ये मेरा एक पिरामिड है, मैं इन्हू थोड़ा डार्क कर देने ताकि अपन पता चले कि इन्हों के अंदर स्पेस भी प्रेजेंट है। ये डार्क वाले मेरे की ने रिनल पिरामिड्स ने, दीज आर द डार्कर रिनल पिरामिड्स, दिस इज द डार्कर वन रिनल पिरामिड। ठीक है, ये भी मेरा की हो गया रिनल पिरामिड, दिस इज रिनल पिरामिड। ਜਦੋਂ ਇਹ अंदर आया एओर्टा ब्लड सर्कुलेशन लैके, ये मेरे की करता है, ये इस स्पेस के अंदर जिन्हों कहते कॉलम्स ऑफ बर्टीनाई, मैं इतने लिखा नहीं है, आई कैन राइट हेयर, तो अपने कोल जिहड़ी स्पेस हुंदी है ना बिटवीन द टू रीनल पिरामिड्स, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ, द नाम है बर्टीनाई, बर्टन में लिखा होंगे कॉलम ऑफ बर्टन। यह इस जगह ते चली गई, लो जी इत्थे पहुंच गई। ठीक है, हुण ये इत्थे कॉर्टेक्स के अंदर ये बहुत सारिया ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, इट विल स्प्लिट ताकि जिन्ने भी नेफ्रॉन्स ने हर एक नूं मैं ब्लड सप्लाई दे सकां, ते उत्थों दी मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चक्का वेन दे अंदर, जिहड़ी रीनल वेन है उहदे अंदर वो ब्लड पोर हो जाए, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हार्ट कोल पहुँच जाए। क्लियर? हुण जी नेफ्रॉन्स ने ना जिहड़े वो बहुत सियाने हैं, नेफ्रॉन्स की ने बेटे, नेफ्रॉन मेरे कोल, नेफ्रॉन दी स्ट्रक्चर आपां 10th च कीती हुई, हजे मैं उहदी डिटेल नहीं करा रही तुहानूं, मैं दसदी हां। जो तुसी 10th च कीता होया, तुसी कुछ एवें दा स्ट्रक्चर कीता होया, तुसी कीता सीगा ओहदे अंदर कि बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, हुण आपां ओहदा पार्ट डिस्कस करते हैं। जेड़ी मेरी किडनी है ਇਹਦੇ अंदर बेटे कॉर्टेक्स रीजन ਦੇ अंदर, मेडुला ਦੇ अंदर तो पिरामिड्स प्रेजेंट ने। ठीक है, डार्क कर दो। कॉर्टेक्स ਦੇ अंदर बेटे जेड़ा मेरा नेफ्रॉन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये नेफ्रॉन दी बॉडी है जेड़ी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलस and renal tubule। क्लियर? रीनल ट्यूब्यूल है जेड़ा, इनू फर्स्ट डिस्कस करते हैं। यह फर्दर स्प्लिटेड है इनटू बोमेन्स कैप्सूल, एदा पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड पार्ट है लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। फोर्थ पार्ट है डीसीटी, डिस्टल convoluted tubule, proximal, distal, convoluted and loop of Henle। जिहड़ा मेरा नेफ्रॉन है ਇਹਦਾ ऊपर वाला जिहड़ा हिस्सा है, नेफ्रॉन के अंदर रीनल ट्यूब्यूल है जिहड़ा, ਇਹਦਾ सब तो फर्स्ट पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक सॉफ्ट जी चीज़ है, गोल गोल है, मैंने उन्होंने पंच किया उत्तों दी, पंच किया ਉਹਦੇ अंदर एक होल क्रिएट हो गया, मान लो एक आटे का बॉल है, आपने उन्होंने उत्तों दी पंच किया, ਉਹਦੇ अंदर होल क्रिएट हो गया, बट ਉਹਦੇ अंदर डबल मैमब्रेन बन गई, तो वो एक कप है, दैट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर जिहदे अंदर एक कैविटी क्रिएटेड है। इत्थों दी ਇਹਦੀ फर्स्ट स्ट्रक्चर जिन्हों आप पीसीटी कहने, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
फिर ਇਹਦਾ आ गया लूप ऑफ हेनली जो मैं इत्थे भी बनाया हुआ है लूप ऑफ हेनली एंड फिर अपने को आ गया ਇਹਦਾ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ जो कोल पिया होया जो बोमेन्स कैप्सूल दे नेड़े है वो मेरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। P मतलब पास प्रॉक्सिमल P stands for पास P stands for प्रॉक्सिमल D stands for distal D stands for दूर। ठीक है तो अपने कोल एक कोल है ਇਹਦਾ फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये मेरा DCT है नेफ्रॉन मेरे को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन का जिहड़ा मेजर पार्ट हुंदा है ओहो मेरे कोल कॉर्टेक्स रीजन दे अंदर हुंदा है। नेफ्रॉन्स दो तरह दे हुंदे हैं बेटे कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है हुण देखो नेफ्रॉन की लोकेशन की है कुछ नेफ्रॉन्स मतलब ज़्यादातर कुछ नहीं ज़्यादातर नेफ्रॉन्स अंडर द नॉर्मल कंडीशंस जो वर्क करते हैं नॉर्मल सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ने 80% नेफ्रॉन इन्हां दा मेजर पार्ट यानी कि इन्हां दा लूप ऑफ हेनली PCT DCT नॉट लूप ऑफ हेनली इन्हां दा PCT DCT है जिहड़ा ओहो इत्थे कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट है जिहड़ा इन्हां दा लूप ऑफ हेनली है वो कॉर्टेक्स के अंदर घूम के आंदा है। कुछ नेफ्रॉन्स एवें दे हुंदे जिन्हां दा लूप ऑफ हेनली दा कुछ पार्ट ही सिर्फ पिरामिड दे अंदर एंटर हुंदा लूप ऑफ हेनली दा स्मॉल पार्ट मतलब उन्हां दा लूप ऑफ हेनली दा छोटा जिहा हिस्सा ओदे अंदर घूम के बाहर आंदा है। क्लियर जिहड़े जक्स्टा मेडुलरी हुंदे ने ओहो क्योंकि देखो जिवें जिवें ब्लड सर्कुलेशन मिल रही है तो कोई दूर है कोई पास है तो जिहड़े जक्स्टा मेडुलरी ने वो इस जगह ते नेड़े ने पिरामिड दे नेड़े ने मेडुलरी रीजन दे नज़दीक ने तो उन्हां दा लूप ऑफ हेनली दा क्योंकि देखो हुण इहदी बॉडी इत्थे आ गई इन्हें अपना PCT बाहर रखना DCT बाहर रखना इहदा लूप ऑफ हेनली दा जिहड़ा मेजर पार्ट है उहदे अंदर घूम के आता है। क्लियर है बेटे दो तरह के नेफ्रॉन्स ने नेफ्रॉन के दो हिस्से ने ग्लोमेरुलर है ते रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल सेकंड पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल थर्ड पार्ट है लूप ऑफ हेनली फोर्थ पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे असी 10th क्लास कलेक्टिंग डक्ट भी पढ़े वो कलेक्टिंग डक्ट मैं बाद च दसूंगी क्योंकि वो एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होंदा वो कई सारे नेफ्रॉन्स ने जिहड़े वो मिल के क्रिएट करते हैं। फिलहाल आपां DCT तक ही करते हैं। ठीक है तो अपने कोल की हो गया हुण आ जाओ बैक टू द ग्लोमेरुलस कि ग्लोमेरुलस की हुंदा है। हुण स्टोरी नू बैक कनैक्ट करो आपां ने लास्ट कहा कि हार्ट तो ब्लड सर्कुलेशन है जिहड़ी वो आ रही है वो अंदर एंटर होई रीनल आर्टरी वो अंदर जाके जी स्प्लिट होगी आर्टीरियोल्स के अंदर ते वो आर्टीरियोल है जिहड़ा वो वेरियस कैपिलरीज के अंदर स्प्लिट हो गया। क्लियर हर कैपिलरी हर नेफ्रॉन नू ब्लड सप्लाई दे रही है क्योंकि नेफ्रॉन ने ब्लड के अंदरों दी यूरिया कढ़ना है। क्लियर नेफ्रॉन अल्ट्रा फिल्टरेशन करता है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन ये आप कमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करांगे। फिलहाल कि नेफ्रॉन ने फिल्टरेशन करना है। क्लियर नेफ्रॉन ने ब्लड चो वेस्ट प्रोडक्ट्स नू बाहर रिमूव करना है। क्लियर हुण मेरे कोल इमेजिन करो कि मैं इत्थे आह ब्रांच लेके गई आ ब्रांच फर्दर आर्टीरियोल्स के अंदर डिवाइड होगी कैपिलरीज बन गया एंड दिस इज द कैपिलरी जिहदे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जिहदे अंदर सब कुछ प्रेजेंट है जिहदे अंदर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इसका डायामीटर भी ज़्यादा होगा तो यह वैसल है जिहड़ी यह इत्थे पहुँच के एक कैपिलरी ये जिहड़ी अपने कोल आई ये ब्रांच होगी ये इत्थे आके फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू द कैपिलरीज। तो जिहड़ी ब्रांच किसी भी बोमेन कैप्सूल दे अंदर एंटर हुंदी है ब्लड नू लैके ऑक्सीजनेटेड ब्लड नू लैके दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर इत्थे आके स्प्लिट होगी स्प्लिट होके हुण ना जी इन्हें बाहर भी तो जाना है ना इन्हें ब्लड चो समान देता
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗੀ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਤੇ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਫਰੈਂਟ ਆਰਟੀਰੀਓਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਆਰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਰਗਨ ਨੇ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੈਨਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, एफरेंट भी आर्टीरियोल है, इफरेंट भी आर्टीरियोल है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उवें दी उवें ही चला गया, क्योंकि इत्थे अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो होगी लेकिन वो ऑक्सीजन सारे नीचों तक सप्लाई नहीं हो सकती सी, ठीक है। तो इस करके वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड दा ऑक्सीजनेटेड ही अगे निकल गया, ठीक है। तो उन्हें मतलब इत्थों की जो वैसल लीव की तो उदों वो एफरेंट आर्टीरियोल ही रहा, इफरेंट आर्टीरियोल आया तो एफरेंट गया तो इफरेंट आर्टीरियोल दा आर्टीरियोल, उहदे कोल ऑक्सीजन इज स्टिल प्रेजेंट। देखो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ च लगती है ना, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उहदे कोल ही प्रेजेंट है। उन्हें फर्स्ट काम तो करता, यूरिया तो देता एफरेंट आर्टीरियोल ने, दूजा काम है जड़ा वो भुल गया, क्लियर। हुण उहनूं दूसरा काम भी तो करना पऊगा। सैकेंड काम करन लई जिहड़ा मेरा इफरेंट आर्टीरियोल है ये अगे जाके बेचारा ब्रांचड हो जाता है, ये पीसीटी डीसीटी दे उपर सब दे उपर घुमदा होया, ठीक है। उन्हां दे कोलों दी अगर ब्लड के अंदरों की सर्कुल एक्सक्रीशन के अंदर भी कुछ रह गया तो उन्होंने भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हुण ओह ऑक्सीजन दिंदा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड लैंदा भी है, एंड फाइनली और रीनल वेन दे नाल जाके कनैक्ट हो जाता है। इत्थे तां इह जदों इफरेंट आर्टीरियोल ब्रांच होया तां उन्हें इन्हां सब दे उपर उवें उवें घुमदा गया जिवें जिवें पीसीटी सी डीसीटी सी, लेकिन उहदा पार्ट लूप ऑफ हेनले दे उपर स्ट्रेट ही रहा, जिन्हों आपां कहने आ वॉसा रेक्टा, वॉसा रेक्टा, ठीक है बेटे। तो अपने कोल की हो गया, वी हैव इज अपने कोल ब्लड सर्कुलेशन की है, किडनी दे कोल रीनल आर्टरी गई जो कि डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल अपने एओर्टा के दो पार्ट है, प्रॉक्सिमल जो ऊपर वाली बॉडी नू ब्लड दूगा, डॉर्सल जो लोअर बॉडी नू ब्लड दूगा। डॉर्सल एओर्टा है जिहड़ा वो रीनल आर्टरी दे अंदर स्प्लिट होया, रीनल आर्टरी किडनी दे अंदर गई, वो उत्थे जाके सब डिवाइड होगी, उन्हें एफरेंट आर्टीरियोल्स बना ले, हर एफरेंट आर्टीरियोल है जिहड़ा वो बोमेन कैप्सूल दे अंदर एंटर हो गया। इत्थे जाके एफरेंट आर्टीरियोल ने कैपिलरीज बना लिया, 50 तो भी ज़्यादा पैरेलल कैपिलरीज बना लिया, जिन्ना कैपिलरीज नू आपां कहने आ ग्लोमेरुलस, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टीरियोल आया, वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने तो बाद जिहड़ा उत्थे कुछ मुच बनिया वैसल्स दा, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस, क्लियर। हुण ग्लोमेरुलस चो जिहड़ी वैसल निकली वो इफरेंट आर्टीरियोल है, बट उहदे कोल ऑक्सीजन हजे भी प्रेजेंट, उन्हें यूरिया तो डिस्चार्ज करता लेकिन उहदे कोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देना चाहती है सारे किडनी के सैल्स नू ताकि सैल्स प्रॉपरली वर्क करन, तो फर्दर नैटवर्क बना लैंदी है। उहदा पीसीटी दे उपर उवें घुमावदार नैटवर्क है, डीसीटी दे उपर, लेकिन लूप ऑफ हेनली दे उपर आके ओह की कर दिंदी है, एक स्ट्रेट ट्यूब ही बनाती है। तो इन्ना ट्यूब ऑफ नैटवर्क ऑफ जिहड़ा ट्यूब्स बनया है, इफरेंट आर्टीरियोल दा जिहड़ा नैटवर्क बनया है उन्होंने कहते हैं पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क, ठीक है, पैरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पैरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क भी कह सकते हो। तो इफरेंट आर्टीरियोल है जिहड़ा उहदे अंदर ब्लड जिहड़ा है वो घट वॉल्यूम दे नाल चला जाता है। हुण अपने कोल जिहड़ा पैरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क दे अंदर डिवाइड हो गया, जिहड़ा पैरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸਾ ਰੈਕਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਲੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਗੇਸਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਤਲਬ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਇਫਰੈਂਟ ਆਰਟੀਰੀਓਲ ਦੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਨਲ ਵੇਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਨਲ ਵੇਨ ਕਿਡਨੀ ਚੋਂ ਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਐਂਡ some part of or we can say the parts of nephron है ਜਿਹੜਾ ਉਹ डिस्कस करे ने। ਤਾਂ nephron is structural and functional unit of kidney। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ DCT ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਹੈ, PCT, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ DCT ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟਸ। ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਮ ਆਫ ਬਟਨਾਈ, ਮਾਈਨਰ ਕੇਲਿਕਸ, ਮੇਜਰ ਕੇਲਿਕਸ, ਰੀਨਲ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਡੂਲਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੀਨਲ ਪੈਪਿਲਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋਗੇ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿੰਨੇ ਮੈंने ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟਲ ਅਯੋਰਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਰੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਰੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਮੈਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟੇ, ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਲਪੀਜੀਅਨ ਟਿਬਿਊਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਲਪੀਜੀਅਨ ਟਿਬਿਊਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਲਪੀਜੀਅਨ ਟਿਬਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਫਰੋਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨੈਫਰੋਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਯੂਰੇਟਰ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਐਂਡ ਯੂਰੇਥਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਰੇਟਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਲਮ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਨਲ ਪੈਲਵਿਸ ਚੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਐਂਡ ਯੂਰੇਟਰ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਐਂਡ ਨੈਫਰੋਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਕਿਡਨੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਐਂਡ ਸਮਹਾਉ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਫਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈंने ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਕਲਾਸ ਹੋਗੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ। 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਆਈ ਨੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। Thank you so much.